Okay, so today is 11. While we talk about uveitis, the important thing, uh, this is cornea, this is sclera, this is iris, this is ciliary body, and this is the choroid, which is a continuation of the ciliary body, right? This is the pupil. Pupil is a hole or an aperture in the iris. It is not a structure. So the space between the iris and the cornea is called anterior chamber, which contains the aqueous humor. The innermost part of the cornea is the endothelium, outermost part is the epithelium. And anterior uveitis is defined as when there is inflammation of the iris. Intermediate uveitis is the inflammation of the ciliary body, and posterior uveitis is the inflammation of the choroid. It is divided into three types when we talk about the anatomical classification. Besides anatomical classification, there are some other classifications like granulomatous inflammation or non-granulomatous inflammation depending upon the diseases. But we confine ourselves to the anatomical classification. Now, I will tell you the important points in all the three types of uveitis. In anterior uveitis, the important point to remember is that the treatment we give are topical steroids and cycloplegics and mediatics. साइक्लोपेजिक्स डिफरेंट है, मीडियाटिक्स डिफरेंट है. साइक्लोपेजिक्स आमतौर पर डायलेटेशन नहीं करते, प्यूपिल को डायलेट नहीं करते, लेकिन हम इसमें साइक्लोपेजिक्स कई जैसे एट्रोपिन है. एट्रोपिन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोपेजिक एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्यूपिली डायलेटर, दोनों काम करती है. Tropicamide is predominantly a pupil dilator, mediatic predominantly. Cyclopentolate is predominantly cycloplegic. Now, how much steroids, eye drops? We give 0.1% prednisolone or dexamethasone. Almost the frequency depends upon the intensity, and the intensity of the anterior uveitis is measured by how much inflammatory cells are present. So we give steroids every 15 minutes to every 1 hour to every 4 hours to only 4 times a day. It can vary. How we measure the frequency, the severity of the anterior uveitis inflammation? We measure the cells of the number of cells in the anterior chamber. How we measure the number of cells in the anterior chamber? We measure it on the slit lamp. The settings are full power of the light of the slit lamp, highest magnification possible in the slit lamp, and the setting of the slit lamp is called because it makes a slit. So we make a slit in the anterior chamber. For example, this is the anterior chamber. We make a slit in the anterior chamber. ये देखें, जो 3 मिलीमीटर वाइड है और 1 मिलीमीटर ये लंबी है. समझ आई? 3 मिलीमीटर वाइड स्लिट, 1 मिलीमीटर इन लेंथ. दीज आर यूनिवर्सल सेटिंग्स. ठीक है. और स्लिट लैम्प जो है वो फुली
इल्यूमिनेटेड है, जितनी उसकी लाइट है फुली मैग्नीफाइड है और हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन पे है। आपने इस स्लिट के अंदर कितने सेल्स हैं उसको काउंट करना है, ठीक है। उसकी ग्रेडिंग आती है आगे, आपकी बुक में लिखी होगी। ग्रेड 1 है 5 to 10 सेल्स, ग्रेड 2 है 11 to 20, उसके बाद है 21 to 40, उसके बाद है मोर देन 50 सेल्स, ठीक है। अब ये जितने अगर मोर देन 50 हो जाएगा तो ये स्लिट लैम्प, ये जो एंटीरियर चैम्बर है, सेल्स हैं, ये इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि ये हाइपोपियन बना देंगे। हाइपोपियन इज कॉल्ड पस इन द एंटीरियर चैम्बर। यूजुअली ये कैटेट के बाद आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लिकेशंस में एंडोथर्माइटिस में, लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड पस in the sense that because in endophthalmitis after cataract surgery is infective and this is sterile. This is sterile pus or inflammatory cells which accumulate in the anterior chamber. If the cells are more than 50, along with the proteins and all that stuff. So this is how we measure the severity of the uveitis, according to how much cells are present. And according to this, we advise the patients steroids. Usually we give topical steroids. If both eyes are involved, then we may give oral steroids, or we may go for subconjunctival or subtarsal subtenon injections in the conjunctiva. If it is unilateral, intractable, if it is not treating, not getting okay. So ये तो हो गया स्टीरॉइड्स का देने का। उसके बाद साइक्लोपेजिक देने का मकसद ये है कि पेशेंट की जो सिविल बॉडी है उसका जो स्पैज़म है, जो इस तक खिंचा हुआ है, उसको रिलीव किया जाए। उसको रिलीव करने से क्या होगा, जैसे ये देखें मेरा पट्टा अगर खिंच गया तो मुझे दर्द होगी। अगर मैं इसमें कोई हायोसिन का इंजेक्शन लगा लूँ या मसल रिलैक्सन लगा लूँ तो रिलैक्स हो जाएगा। साइक्लोपेजिक्स का मकसद ये है कि पेशेंट की पेन ख़त्म हो, जो कि साइक्लोपेजिक से होती है, मियोसिस से नहीं होती पेन, ठीक है। ये साइक्लोपेजिक देने का मकसद है। मियोसिस जो है प्यूपिल, वी हैव टू कीप द प्यूपिल मोबाइल। ये भी नहीं करना आपने कि उसको डायलेट कर दें फुली, ये भी नहीं करना कि फुली कंस्ट्रिक्ट रहने दें। जो मीडियाटिक्स हैं उसको देने का मकसद ये है, आमतौर पे हम ट्रोपिकामाइड देते हैं जो 4 से 6 घंटे तक इसका असर रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। TDS देते हैं दिन में 3 दफ़ा। उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि अभी आपने जिक्र किया पोस्टीरियर सनीके का, तो पोस्टीरियर सनीके क्या होता है? हाँ, posterior sneaker are the adhesions between the iris and the lens। और anterior sneaker क्या होता है? वो कॉर्निया के साथ है। हाँ, anterior sneaker होता है adhesions between the peripheral iris with the cornea। तो जब आप प्यूपिल को मोबाइल रखते हैं तो वो सनीके नहीं बनते, जब वो बनने लगते हैं तो वो तोड़ देता है, उसको मूवमेंट उसकी तोड़ देती है। एक जोन सा उसका इंटेंशन ये होती है। द सेकेंड इंटेंशन जो है मीडियाटिक्स की वो ये होती है कि जो एट्रोपिन है और ट्रोपिकामाइड है वो जो ब्लड ऑक्यूलर बैरियर है उसको स्ट्रेंथन करता है, जिसकी वजह से वो जो प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये दो, और भी एक दो हैं, लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यू हैव टू कीप द प्यूपिल मोबाइल। अगर आप उसको एट्रोपिन दे देंगे लॉन्ग स्टैंडिंग तो वो डायलेटेड फॉर्म में भी सनीखे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटीरियर यूवेटिस में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और
अगर एंटी यूवेटिस की कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़ी सी बता देता हूँ। एंटी यूवेटिस में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इट मे डेवलप ग्लाकोमा, सो आपने इसको भी देखना है। और इट मे डेवलप हाइपोटनी, बिकॉज इफ द सिलरी बॉडी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, then ciliary body inflammation may cause the shutdown of ciliary body, and ciliary body makes up the aqueous humor. So aqueous humor will not be formed, and intraocular pressure may become lower than 6 mm of mercury, and eye will become very soft. It is called hypotony, hypotenuse eye, and it is very painful, and it is gone eye. इसमें नज़र चली जाती है, क्योंकि जब आई फॉर्म ही नहीं रहती है एनाटॉमिकली, तो उसके बाद कैटरैक्ट और ये सब चीज़ें बन जाती हैं। और यूवेटिस में, एंटी यूवेटिस में ग्लाकोमा, कैटरैक्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, पोस्टीरियर सैनिकी की वजह से कैटरैक्ट वगैरह भी बन जाता है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पहले से पता थी। एंटी यूवेटिस में थोड़ी सी मैंने इनको और इलेबोरेट कर दिया। अब थोड़ा सा आते हैं इंटरमीडिएट यूवेटिस में। उस पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंटरमीडिएट यूवेटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। इंटरमीडिएट यूवेटिस बेसिकली इज द inflammation of the posterior part of the iris and ciliary body, ठीक है। और इन 5% ऑफ द, ये वैसे इंसिडेंटल सी ये मेरे जेहन में बात आ गई है, 5% ऑफ द केसेस ऑफ इंटरमीडिएट यूवेटिस आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देयर इज नो सच relation, but it is an observation. On the basis of studies, it has been seen that people who are having intermediate uveitis, out of them 5% also have multiple sclerosis. इंटरमीडिएट यूवेटिस के अंदर जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसमें ये है आपका जैसे कॉर्निया है और ये रेटिना है। द मेन part is that the patient comes to you with blurring of the vision and floaters. This is the usual presentation of intermediate uveitis. You will hardly find any inflammatory cells in the pupil, in the anterior chamber. On torch examination, there will be no constriction of the pupil. ये आमतौर पर मिस हो जाता है स्लिट लैम्प पे, डॉक्टरों से हमसे भी मिस हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप देखें, you may find a few cells in the anterior vitreous behind the lens on the slit lamp over high magnification. और जो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन है वो है मैकुलर एडिमा। ये है ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर मैकुला है, तो मैकुला विल बी स्लाइटली एलिवेटेड। Macula will be slightly elevated. तो macular edema is basically the main sign of intermediate uveitis, and it causes typically the decrease of vision from 6.6 to 6.9 or 6.12, not more than that, and it is not corrected by refraction. इसका ट्रीटमेंट क्या है? Now it will not be we cannot help the patient with eye drops because the penetration of the eye drops is not there. We have to give posterior subtenon injection. What are posterior subtenon injections? मिसाल के तौर पे ये है, पोस्टीरियर सबटेनॉन इंजेक्शन में अगर ये नोज है और ये लेफ्ट आई है, ये कॉर्निया है, आपने यहाँ पर
आपने इंजेक्शन देना है। कंजक्टावा के नीचे होता है टिनोन, उसके नीचे आपने इंजेक्शन देना है। आमतौर पर लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड देते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो हम देते हैं वो ट्राइमसिनोलोन जो 14 डेज तक ऐड करता है, और साथ स्टीरॉइड टॉपिकल ड्रॉप्स भी दे देते हैं, लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है। उसके बाद इंट्राविट्रल इंजेक्शन भी देते हैं, यानी कि ये लिम्बस है ना, जिस तरह वेस्टिन देते हैं या जिस तरह वेस्टिन देते हैं, अच्छा तो ये 1.5 millimeter away from the limbus you give injection into the vitreous cavity, और ये आप आमतौर पे देते हैं। इसकी जो अमाउंट है वो होती है 0.01 ml। जो इंसुलिन सिरिंज है उसमें वो पूरी अगर भरें तो वो 1 cc बनती है। उसका जो पहला पॉइंट है सिर्फ उतना आप विट्रस कैविटी में देते हैं, और ये आम तौर के ऊपर ट्राइमसिनोलोन भी हो सकता है और सोलोकॉटिव टाइप भी हो सकता है इंजेक्शन, फास्ट एक्टिंग। साथ आप इसके पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लाइक नेवानेक, जिसके अंदर आइबोप्रोफेन होती है, टॉपिकल आई ड्रॉप्स, ठीक है। और इट इज़ अ रिफ्रैक्टरी डिजीज, यूजुअली टेक्स 6 weeks टू रिजॉल्व, यूजुअली यूनिलैटरल बट कैन बी बाईलैटरल आल्सो। और ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें इंटरमीडिएट यूवेट्रस के बारे में थी। ये अब आते हैं जी पोस्टीरियर यूवेट्रस के बारे में। पोस्टीरियर यूवेट्रस जो सा है, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोराइड। ये रेक्टा है और ये उसके आगे कोराइड है, तो it can involve the retina also, so it is called chorioretinitis. Now there is a possibility, the most commonly choroid is involved in systemic disease, and usually unlike anterior uveitis, which क्या हुआ मुझे बताएं यार, मैं भी थोड़ा सा हंस लूंगा। एवरीबॉडी स्माइलिंग, आई विल आल्सो स्माइल अ लिटिल बिट। बता दें किसे? अच्छा, तो इसमें हंसने की क्या बात। अच्छा, तो unlike anterior uveitis which can be non-granulomatous, जो posterior uveitis है ये यूजुअली granulomatous होता है। फॉर एग्जांपल कई दफ़ा हमें ग्रैनुलोमास नज़र आते हैं फंडोस्कोप से और थर्मोस्कोप से। मल्टीफोकल कोरोइडाइटिस बोलते हैं उसको। कोराइड की इन्फ्लेमेशन को कोरोइडाइटिस बोलेंगे ना। यूनिओकुलर कोरोइडाइटिस हो सकता है, मल्टीफोकल कोरोइडाइटिस हो सकता है। मल्टीफोकल कोरोइडाइटिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस तरह आपको मल्टीफोकल लीजन नजर आएंगी इन्फ्लेमेटरी। दे कैन बी एक्टिव, दे कैन बी इनएक्टिव। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो आप जब सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन, अच्छा एक और चीज़, यूवेट्रस का कोई भी केस हो, एंटीरियर हो, इंटरमीडिएट हो, पोस्टीरियर हो, आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। जैसे ANA एंटीजन, ठीक है, उसके बाद
HLA, उसके बाद अलीज़ा, इस तरह की जितनी सारी इन्वेस्टिगेशन है वो आपने करानी है। क्या हुआ? Should I stop? हैं? क्या हुआ यार? अच्छा पहले मुझे लेट मी कंप्लीट जल्दी से, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। तो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, असल मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, ये मेरी आदत है पता नहीं, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि अगला बंदा क्या कर रहा है। मैं बड़ा इन्वॉल्व हो जाता हूँ पढ़ाने में, मुझे नहीं पता लगता कि स्टूडेंट जो से हैं वो, मैं ये समझ रहा होता हूँ, ये मेरी गलत फहमी होती है शायद कि स्टूडेंट्स भी इतने इन्वॉल्व हैं, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स हो इन्वॉल्व ना हो, मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, मैं हर दफ़ा उतना ही इन्वॉल्व होता हूँ जितना फर्स्ट टाइम होता हूँ, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आई लव टीचिंग। तो अगर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हों तो ये मेरे लिए एक बहुत समझ लें कि कोई मुझे कोई अगर कोई स्टूडेंट कोई बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता है ना, तो ही कैन गेट इन्वॉल्व इन व्हाट आई एम टेलिंग टू द स्टूडेंट। और अगर कोई इन्वॉल्व नहीं होता तो इट डजेंट अफेक्ट मी, आई कीप इंजॉइंग एंड टीचिंग रिगार्डलेस कि वो स्टूडेंट जो से उसको भूख लगी है, पढ़ रहा है, अटेंटिव है, नहीं अटेंटिव, मैं अपना सब्जेक्ट ख़त्म करके ही उठूँगा यहाँ से, ठीक है। आपको ब्रेक बाद में मिलेगी, ठीक है, मुझे अपना काम करने दें, आप बाद में आप जाने और आपका काम जाने। तो इन ब्रीफ मल्टीफोकल कोरिडाइटिस में कई दफ़ा हमें सिर्फ फंडस देखकर पता लगता है कि पेशेंट की जब हम टेस्ट करते हैं कि ही इज़ ऑल्सो हैविंग ट्यूबरकुलोसिस, ही इज़ हैविंग सार्कोइडोसिस और अदर ऑटोइम्यून डिजीज़। तो जो पोस्टीरियर यूवेटस है उसके अंदर एक तो सिस्टेमिक डिजीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। दूसरी बात, उसके ट्रीटमेंट में आपको कोई आई ड्रॉप्स नहीं होंगे और उस पर भी आपको पोस्टीरियर सबटिनॉल इंजेक्शन देने पड़ेंगे जो पीछे जाकर ऐड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग एक्टिंग है स्टीरॉइड ट्राइमसिनोलोन, और यू विल हैव टू गिव ओरल स्टीरॉइड्स डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, और जिस तरह उसकी डोज होती है 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रेडिसोलोन है, वो हम देते हैं TDS डोज में देते हैं 80 मिलीग्राम तक, 100 मिलीग्राम तक, फिर इस तरह टैपर ऑफ करते हैं। स्टीरॉइड्स के अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको इम्यूनोमोड्यूलेटेड ड्रग्स बोलते हैं, लाइक साइक्लोस्पोरिन। उसके अलावा कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं या एंटी ट्यूमर मेडिसिन होती हैं, जैसे बिवास्टुजिमाब है, एंटी ट्यूमर ड्रग्स है, वो रिफ्रैक्टरी केसेस में जो स्टीरॉइड्स ना ठीक हो रहा हो उसमें देते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर आई शुड फिनिश। एंटीरियर यूवेटस, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर यूवेटस के हिसाब से मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगा आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दी हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।